तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हर्ष सांघवी जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया से वो तमाम जानकारियों को शेयर करेंगे कि आखिर अभी भी कितने लोग लापता हैं, कुल कितने लोग अस्पताल में भर्ती। सुनिए। घटनाમાં કાલે સાંજે 6:30 વાગે મોરબીનો આ ઝૂલતો પુલ પડી જવાના કારણે અનેક લોકો એ બ્રિજ પર રવિવાર હોવાના કારણે પોતાના પરિવાર જોડે ફરવા આવેલા હતા। 6:30 વાગે આ ઘટના બની। 6:45 થી મોરબી શહેરની ફાયર બ્રિગેડની ટીમ, એમ્બ્યુલન્સ, 108 ડૉક્ટરોની ટીમ, સરકારી તંત્ર સ્થળ પર પહોંચી ગયેલું હતું। મોરબી શહેરના નાગરિકોએ બી સરકારી તંત્ર જોડે મળીને તાત્કાલિક આ રાહત કામગીરીમાં જોડાઈને લોકોને બચાવવા માટેની કામગીરી શરૂ કરી લીધેલી। 6:50 થી જ હોસ્પિટલમાં આ નાગરિકોને પહોંચાડવામાં આવેલા હતા અને ખાસ કરીને તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક માત્ર સિવિલ હોસ્પિટલમાં જ નહીં પરંતુ શહેરની તમામ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોને આ દુર્ઘટનામાં જે કંઈ લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક ઈજા પામેલા હોય એવા લોકોને તાત્કાલિક સારવાર મળે અને એની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલી હતી। આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આજુબાજુના તમામ જિલ્લાના કલેક્ટરશ્રીઓને અને ખાસ કરીને રાજકોટ કલેક્ટર, મ્યુનિસિપલ કમિશનરને તાત્કાલિક સૂચના આપેલી। હોસ્પિટલોની તૈયારી, બધી જ જગ્યા પરથી એમ્બ્યુલન્સ હોય કે પછી 108 હોય, ડૉક્ટરોની ટીમ હોય, આ તમામ વ્યવસ્થાઓ તાત્કાલિક કરી લેવામાં આવેલી હતી। દેશના વડાપ્રધાન આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રીને તાત્કાલિક ફોન કરીને અને એમની આખી ઓફિસ દ્વારા આખી રાત જ્યારે આ આખું ઓપરેશન ચાલતું હતું, બચાવની કામગીરી ચાલતી હતી, સંપૂર્ણપણે તમામ દિશાએથી કઈ રીતે મદદ પહોંચાડાય તે માટે આખી રાત આ ટીમ દ્વારા કામ કરવામાં આવ્યું અને સાથે સાથે તાત્કાલિક ગણતરીના કલાકોમાં અહીં NDRFની ટીમ, નેવીની ટીમ, આર્મીની ટીમ, એરફોર્સની ટીમ, આ તમામ ટીમો પહોંચાડી લેવામાં આવી। આશરે 200થી વધારે વિવિધ ફોર્સમાં જોડાયેલા લોકો આ બચાવની કામગીરીમાં આખી રાત કામગીરી કરી છે અને આ બચાવની કામગીરીનું નિરીક્ષણ પ્રધાનમંત્રી ઓફિસ અને ખુદ મુખ્યમંત્રી શ્રી રાત્રે 2:30 વાગ્યા સુધી આ સ્થળ પર હતા। કલેક્ટર ઓફિસમાં સવારે 5 વાગ્યા સુધી વિવિધ દિશાએ કઈ રીતે આની કામગીરી વધુ ઝડપથી થઈ શકે તે માટે પોતે નિરીક્ષણ કર્યું। હાલ બી મુખ્યમંત્રી શ્રી કલેક્ટર કચેરી ખાતે આનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે અને ખુદ પોતે મોરબીમાં જ છે। દેશના ગૃહમંત્રી આદરણીય શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબે આખી રાત વહેલી સવાર સુધી આ બચાવ કામગીરીનું નિરીક્ષણ અને તમામ પ્રકારની મદદ અને ત્યાંથી જે આની જાણકારીઓ લીધી અને આના માટે તમામ પ્રકારની મદદ પહોંચાડવામાં મદદગાર થયા। આ તમામ દિશાએથી એક સાથે આ બચાવ કામગીરી કરીને હાલ ઓફિશિયલ આંકડા પ્રમાણે હજી 2 વ્યક્તિ મિસિંગ બતાડે છે। જે એક બાજુની જાળી જે તૂટી છે અને એ જાળી જે નદીમાં અહીંયા જે ફસાઈ છે એને નિકાલવાની
આખરી પડાવની આ બચાવ કામગીરીમાં જે નેવી, એનડીઆરએફ, એની જે સ્પેશિયલ ટીમ છે ડાઇવર્સની, એના માધ્યમથી એ જાળીને બહાર નીકળવાનો પ્રયાસ ચાલી રહ્યો છે. અમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે આ જાળી જેવી બહાર નીકળશે એવા જે 2 લોકો મિસિંગ છે એ બી મળી જશે. રાજ્ય સરકારની ખાસ કરીને આવી કોઈ બી ઘટના બને તો સૌથી પહેલી પ્રાથમિકતા હોય છે કે બચાવ કામગીરી ખૂબ ઝડપથી ચાલુ થાય. બચાવ કામગીરી એ માત્ર સરકારી તંત્ર જ નહીં, પરંતુ સરકારી તંત્રએ મોરબી શહેરના નાગરિકોને બી આયોજનબદ્ધ સાથે લઈને આ બચાવ કામગીરી ખૂબ જ ઝડપથી આપણે પૂર્ણતાના આરે આવી ગયા છે અને થોડાક જ સમયની અંદર આ બચાવ કામગીરી પૂર્ણ થશે. રાત્રે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ હાઈ પાવર કમિટીનું ગઠન કર્યું. કમિટીના તમામ સભ્યો રાત્રે 2 વાગ્યાથી અલગ અલગ સ્થળેથી, કોઈક સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી હતું, કોઈક બરોડા હતું, કોઈક ગાંધીનગર હતું, તમામ લોકોને રાત્રે જ અહીંયા રિપોર્ટિંગ કરવાની સૂચના આપવામાં આવેલી હતી અને રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી આ તમામ કમિટીના સભ્યો અહીં પહોંચી ગયા છે. એ લોકોએ ઓલરેડી રાતથી જ આ તપાસની કામગીરી ચાલુ કરી છે. આજે આખો દિવસ આ તપાસની કામગીરી વધુ ઝડપથી આગળ વધશે. આની સાથે સાથે જે કોઈ એજન્સી આ બ્રિજની સમારકામનું કામ સંભાળતું હતું, આ બ્રિજ મેન્ટેનન્સનું કામ સંભાળતી હતી, એમાં કલમ 304, 308 અને 114 મુજબ ક્રિમિનલ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. તેની બી તપાસ આજે જ ચાલુ થાય તે માટે એની એક સ્પેશિયલ ટીમ બનાવવામાં આવી છે. રેન્જ આઈજીના અધ્યક્ષસ્થાને આ તપાસને આગળ વધારવામાં આવશે અને ઝડપથી આ તપાસ કઈ રીતે પૂર્ણ થાય તે માટે આજુબાજુના જિલ્લામાંથી બી એમને વધારાના અધિકારીઓ આપવામાં આવ્યા છે. सर कितना डेथ टोल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या मोरबी आ सकते हैं? देखिए, अभी सबसे पहले बचाव कार्य चल रहा है. जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की कोई घटना जब बनती है तो राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता लोगों के बचाव कार्य की होती है. बचाव कार्य के साथ साथ उनकी सारवार की जिम्मेदारी सरकार की होती है. राज्य सरकार ने ये दोनों काम बहुत ही जल्द चालू कर लिए. खास तौर पे ये घटना 6:30 बजे बनी. 6:50 से हॉस्पिटल में पेशेंट्स को पहुंचाए गए. जिला तंत्र राज्य सरकार के द्वारा खास तौर से आसपास के सभी जिलों से एम्बुलेंस, 108 की टीम, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे पहुंचाई गई. और ख़ास तौर पे जिस प्रकार के घटना बनी थी उसको देखते हुए मुख्यमंत्री श्री ने आसपास के सभी जिलों के हॉस्पिटल्स में सभी प्रकार की तैयारियां करने की सूचना दे ली थी. मोरबी के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सरकार द्वारा सूचना मिली थी कि अस्पताल में कोई भी पेशेंट्स यहाँ से लाया जाए, उनकी ट्रीटमेंट तात्कालिक चालू किया जाए, उसकी जो भी कुछ प्रोसीजर होगी वो सरकार द्वारा की जाएगी. मोरबी की प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सभी डॉक्टर्स एट द मोमेंट ये व्यवस्था में लग गए थे और कई पेशेंट्स की अभी भी ट्रीटमेंट चल रही है. पेशेंट्स को ज़रूरत लगे तो राजकोट किस प्रकार से ले जाए उसके लिए भी व्यवस्था बना ली गई थी. साथ में ये पूरे विषय की गंभीरता देख के मुख्यमंत्री श्री ने कल अहमदाबाद से निकलते हुए एक हाई पावर कमेटी की रचना की थी और हाई पावर कमेटी की रचना के साथ ही उनको रात को 2 बजे तक सबको अलग अलग शहर जिले में ये लोग पोस्टेड है. सभी अधिकारियों को कहा गया था कि रात को 2 बजे तक मोरबी में रिपोर्टिंग करना है. पूरी हाई पावर कमेटी कल रात 2 बजे से ही इसकी तहकीकात में लगी हुई है. आज भी पूरा दिन और आने वाले दिनों में यहाँ पे तहकीकात करेंगे. उसके साथ ही जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी उस एजेंसी पे
क्रिमिनल दफ़ा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। कुल मिला के अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। सर मौत का आंकड़ा આ સંપૂર્ણ મેં તમને કહ્યું એ પ્રકારે રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી પહેલાં આખું તંત્ર બચાવ કાર્યમાં હતું, બચાવ કાર્ય જોડે જોડે ટ્રીટમેન્ટમાં હતું, પરિવારજનોને એમના સ્વજનો જલ્દીથી ઘરે પહોંચી શકે તે માટેની વ્યવસ્થામાં હતું। રાત્રે 2 વાગ્યાથી આની તપાસ અને એની કામગીરી ચાલુ થઈ છે। હવે પછીની માહિતી તમને હવે પછીના બુલેટિનની અંદર એની માહિતી આપવામાં આવશે કે કોણ કોણને અને કઈ રીતે આની ઉપર અમે આગળ વધ્યા છે। सर प्रधानमंत्री आ सकते हैं। बोला जा रहा है कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था इस ब्रिज का और एनओसी वगैरह की भी जो बात की जा रही है वो नहीं दिया गया था, तो इस चीज के ऊपर क्या कुछ आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन? देखिए ये सभी विषयों को मद्देनज़र रख के ही ये फरियाद दर्ज की गई है। ये फरियाद दर्ज करने का मतलब ये है कि सभी विषयों पे एकदम गंभीरतापूर्वक तपास हो और ये तहकीकात के बाद इसमें जो कोई लोग ये विषय के अंदर शामिल हैं उन सभी लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए ही ये हाई पावर कमेटी और एक क्रिमिनल केस दोनों दर्ज किए गए हैं। ग्रुप जे છે અને સવાર કેટલા હતા એવું કઈ સમીક્ષા દરમિયાન સામે આવ્યું? 4 વાગ્યા પછી લગભગ आप तमाम लोगों ने मैं જેમ કહ્યું એ પ્રકારે આપ સૌ લોકો આ ઘટનાના બી સાક્ષી છો, આ ઘટનાના બચાવ કાર્યના બી સાક્ષી છો અને આખી રાત જે પ્રકારે બચાવ કાર્ય ચાલુ હતું આ બચાવ કાર્ય પૂર્ણ થવાની સાથે જ આ કામગીરી તપાસની કામગીરી શરૂઆત થઈ ગઈ છે। બપોરે હું આપને સૌને મળીશ ત્યારે આ વિષયની બી જાણકારી આપને આપીશ। હર્ષભાઈ આવી ભૂતકાળમાં અનેક તપાસ પંચો રચાયા છે, તે બાદ યોગ્ય કાર્યવાહી થઈ નથી। મોટી માછલીઓ હંમેશા બચી જાય છે, નાના અધિકારીઓના બલીનો બકરો બનાવી દેવામાં આવશે। 125 મોત થયા છે। આમાં ઉદાહરણ રૂપ દાખલો બેસાડવા માટે રાજ્ય સરકાર શું કાર્યવાહી કરી? એવા કયા દાખલાની તમે વાત કરો છો? સાહેબ ડીજીવીસીએલમાં જે ભૂતકાળમાં સુરતના તક્ષશિલા કાંડમાં ડીજીવીસીએલના એમડી વિરુદ્ધ કોઈ કાર્યવાહી આજ દિન સુધી આજે સંપૂર્ણ હાઈ પાવર કમિટી તમારી સમક્ષ છે। અહીંયા આપ જોઈ શકો છો કે રાત્રે 2 વાગ્યાથી જે કોઈ સેમ્પલ્સ લેવાના હોય, એક બાજુ એફએસએલની કામગીરી હોય, આ તમામ વિષય પર ગંભીરતાપૂર્વક કામગીરી ચાલી રહી છે। મારું એવું માનવું છે કે તમે સૌ જાગૃત નાગરિકો છો। એક તરફ પહેલાં બચાવ કામગીરી પૂર્ણ થઈ જાય પછી આ બધા જ વિષયની જાણકારી આપવા માટે હું આજે આખો દિવસ મોરબીમાં જ છું અને આ સંપૂર્ણ તમારા મનની અંદર જેટલા વિષયો છે એ બધી જ જાણકારી હું આ બચાવ કાર્ય પૂર્ણ થયા પછી તમને આપીને પછી જ હું મોરબી છોડીશ। નદીનું પાણી ઓછું કરવામાં આવ્યું છે, રાહત કામગીરી સરળતા થઈ શકે તે માટે જાહેર जनता માટે ખુલ્લો કરી कितने लोग ब्रिज के ऊपर थे, क्योंकि जिस तरीके से बात आ रही है कि 400 से 500 लोग ब्रिज के ऊपर थे और ये सारे लोग पानी के अंदर गिरे। देखिए जो सही माहिती है वो अभी तक 210 लोगों की आई है और जब बचाव कार्य कंप्लीट होगा उसके बाद हम आपको फाइनल फिगर देंगे। थैंक यू। સાહેબ નગરપાલિકા પ્રશાસને ફ્રેક્ચર સ્ટેબિલિટી રિપોર્ટ ન હોવાનું કહીને પલ્લો જાડી લીધો છે, તો એની इसके बाद के बुलेटिन में मैं आपको ये भी माहिती संपूर्ण दूंगा। हेलो तो गुजरात के गृह मंत्री को आप सुन रहे थे, हर्ष सांघवी, जिन्होंने बड़ी जानकारी दी और कहा कि मरने वालों का जो आंकड़ा है 132 तक जा पहुंचा। अमित शाह पूरी रात जानकारी लेते रहे। ये बड़ी बात हर्ष सांघवी ने कही और कहा कि मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंचे। अस्पताल में भी आपने देखा भूपेंद्र पटेल पहुंचे थे, घायलों का हालचाल जाना था। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, मोरबी हादसे में अब तक मरने वालों का जो आंकड़ा 132 तक जा पहुंचा है। उच्च स्तरीय समिति इस पूरे मामले की जांच करे, लगातार टीम रात 2 बजे से ही मौजूद है। ये जानकारी हर्ष सांघवी, जो कि गुजरात के गृह मंत्री है, वो दे रहे थे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार रात भर जानकारी लेते रहे। वैभव लगातार हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं।
पल पल का अपडेट दे रहे हैं। वैभव, अब बड़ी जानकारी हर्ष सांघवी की तरफ से दी गई, वो कह रहे हैं, क्योंकि आप भी वैभव वहां पर मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि रात भर से लगातार जो उच्च स्तरीय समिति है वहां पर मौजूद है, जांच चल रही है और रात भर रेस्क्यू पहुंचा, लेकिन बड़ी बात है कि 132 तक जा पहुंचा मौत का आंकड़ा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है जो हर्ष सांघवी हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस आंकड़े को लेकर एक क्लियरेंस जो है वो आया है। तस्वीरें थोड़ा सा साफ हुई हैं। जिस आंकड़े को हम अब तक 122 के आसपास बता रहे थे, वो आंकड़ा बढ़कर अब 132 पहुंच चुका है। तमाम लोग अभी भी जो है वो लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है, और इस तलाश के बीच 132 का यह आंकड़ा परेशान करने वाला है। साथ ही उन्होंने जिम्मेदारों को लेकर इस बात का जिक्र किया कि इस पूरे मामले में जो भी जिम्मेदार हैं, जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने को बनाने का काम लिया या फिर जिसने भी इसका ठेका लिया, उसके खिलाफ भी आईपीसी की धारा 304, 308 के तहत क्रिमिनल एक्टिविटीज में मामला जो है वो दर्ज किया गया है और इस दिशा में अब जांच की कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी। एसआईटी भी इस पूरे मामले पर गठित हो गई थी 5 सदस्यीय। उस एसआईटी के गठन के बाद अब वो एसआईटी इस पूरे मामले की परत दर परत खंगालेगी कि आखिर चूक कहां पर हुई है, लेकिन इस चूक के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। अनूप, तस्वीरें आप दिखाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन की। यहां पर सेना के जवान, वायु सेना के जवान, आपको एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम टीमें आपको नजर आएंगी जो यहां पर इस बीच इस नदी में उतरकर रेस्क्यू करती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही हमारे ठीक पीछे ये तस्वीर ये बताती है कि लापरवाही और चूक आखिर हुई कहां पर। इस इमारत को आप देखिए, इस इमारत पर आप एक बार नजर डालिए, कितनी ज्यादा पुरानी ये इमारत है और ये पुल बताया जा रहा है कि तकरीबन 140 साल पुराना ये पुल है। 1879 में इस पुल की शुरुआत की गई थी, जब मुंबई के गवर्नर ने इस पुल की ओपनिंग की थी। और ये स्ट्रक्चर कितना ज्यादा पुराना है, इस पुराने स्ट्रक्चर को जब रेनोवेट किया गया, इस पुल को दोबारा 6 महीने बाद खोला गया, तो 6 महीने बाद बिना क्लियरेंस के इस पुल पर तमाम लोगों की आवाजाही को छूट दे दी गई और यही छूट इस बड़े हादसे का कारण बनी। और देखते ही देखते इस केबल पुल के टूटने के बाद तमाम लोग जो हैं वो इस मच्छू नदी में समा गए। रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो लोग लापता हैं उनको लगातार तलाशने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो लोग घायल हैं उन्हें यहां मोरबी के प्राइवेट अस्पतालों को भी ये निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर इस हादसे से जुड़ा कोई भी घायल शख्स आपके पास पहुंचता है तो आप इलाज करिए, उसका सरकार पूरी जिम्मेदारी लेती है इलाज की। इलाज के साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है तो वो राजकोट भी ले जाएंगे उन तमाम लोगों को जिनकी स्थितियां जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल यानी कि क्रिटिकल सिचुएशन है। साथ ही आप सामने देख सकती हैं कि वहां पर जेसीबी मशीन जो है वो सुबह से ही उस बाउंड्री वॉल को तोड़ने में लगी हुई है ताकि बाउंड्री वॉल को तोड़कर इस पानी के लेवल को जो है वो डाउन किया जाए। कुछ पानी का लेवल कल रात की अपेक्षा जो है वो कम भी हुआ है। आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते होंगे कि वाटर लेवल जो है वो पहले यहां तक था जब रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई, लेकिन अब वहां पर जैसे जैसे पानी के लेवल को कम किया जा रहा है तो पानी का लेवल जो है वो नीचे जा रहा है। ये जलकुंभी जो है जहां पर खड़े हुए हैं परेशान कर एक चीज समझ में आती है कि यहां पर गाद बहुत ज्यादा है, जो दलदल है उसकी वजह से क्या अभी भी कुछ लोगों के अंदर फंसे होने की संभावना है? इसको लेकर गृह मंत्री कुछ कहते नजर आए, उनका रेस्क्यू कैसे होगा? बिल्कुल, डीप फ्लोटिंग के जरिए उन सभी लोगों के रेस्क्यू की कवायद जो है वो लगातार जारी है। तमाम गोताखोर जो हैं वो भी इस वक्त इस नदी के आसपास मौजूद हैं। कुछ गोताखोर जो हैं वो इस नदी के अंदर भी डीप फ्लोटिंग करके जो दलदल में फंसे हुए लोग हैं, जो दलदल में फंसे हुए शव हैं, जो दलदल में स्थितियां हैं, उन तमाम चीज़ों को खंगालने में कई टीमें, कई गोताखोर जो हैं वो लगे हुए हैं। और जटिलता रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी आई होगी इस बात से समझा जा सकता है, इस तस्वीर से समझा जा सकता है कि जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, कल देर रात वाटर लेवल यहां तक था और इस वाटर लेवल के बढ़ने के बीच ये चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ गई कि कैसे इन लोगों का रेस्क्यू किया जाए। और इस वाटर लेवल के बीच आपको जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे आपको इस पानी में जलकुंभी नजर आएगी, जल जंगल नजर आएगा जो परेशान कर रहा है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में। लेकिन वहां पर जेसीबी के जरिए इस बाउंड्री वॉल को तोड़ा जा रहा है और इस बाउंड्री वॉल को तोड़कर ये पानी जो है उसको बाहर निकाला जा रहा है
ताकि वाटर लेवल कम किया जा सके और वाटर लेवल कम करने के साथ ही साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उस रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा वृहद किया जा सके, उस रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा तेज किया जा सके, इसको लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल वैभव, आप दिखा रहे हैं वो तस्वीरें, आप दिखा रहे हैं कैसे वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो लोग अभी भी लापता हैं उन तक रेस्क्यू टीम पहुंचे, उनको फौरन वहां से निकाला जा सके और उनका बचाव किया जा सके। वैभव, हम आपके पास लौट रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने मीडिया से तमाम जानकारियों को शेयर किया, क्या कुछ उन्होंने बताया, आइए सुनवाते हैं आपको। जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। कुल मिला के अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। तो बिल्कुल एक बड़ी जानकारी, लेकिन वैभव अब सवाल यही है कि हमने जिम्मेदारी तो तय कर ली है, मगर जो लापरवाही हुई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इतना बड़ा हादसा हो गया, जिन लोगों की जान चली गई, जिनके परिजनों की मृत्यु हो गई, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर कौन लेगा? बिल्कुल, गृहमंत्री के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जिक्र जरूर किया गया है कि इस पूरे मामले पर क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। आईपीसी एक्ट 304, 308 के तहत इस पूरे मामले पर आगे कार्रवाई जो है वो की जाएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कैसे आगे बढ़ेगा इस बात का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन जिम्मेदारी तय होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या गुजरात के अंदर महज एक ही मोरबी का ये केबल पुल है या फिर ऐसी कई और ऐसी चीजें हैं, कई और ऐसी इमारतें हैं, कई और ऐसी पुरानी चीजें हैं जिनको लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए कि वहां पर क्लियरेंस को लेकर क्या स्थितियां बिल्कुल क्लियर हैं। जो चूक यहां पर हुई है वो चूक अगर एक सबक बनकर इन तमाम शासन प्रशासन के लोगों तक पहुंचती है तो शायद आने वाले दिनों में ऐसा कोई हादसा, ऐसी कोई घटना हमारे सामने ना आए, क्योंकि यहां पर महज एक चूक नहीं हुई है दीपेश, तमाम गलतियां हैं। इन तमाम गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन्हीं गलतियों की वजह से 132 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 132 से ज्यादा लोग इस नदी में डूब कर बड़े हैं। ये सवाल यहीं पर खत्म नहीं होंगे, ये सवाल लगातार पूछे जाएंगे कि बिना क्लियरेंस सर्टिफिकेट के इस पुल को रेनोवेशन के बाद दोबारा चालू करने की परमिशन किसने दी? जिस पुल की क्षमता 150 लोग हैं, 200 लोग हैं, उस पुल के ऊपर 400 लोग कैसे पहुंचे? एक दिन के अंदर 650 से ज्यादा टिकटों की बिक्री क्यों हुई? क्या टिकट काउंटर वालों को नहीं टोकना चाहिए था? तमाम सवाल हैं और इन तमाम सवालों के जवाब अब लगातार खंगाले जा रहे हैं। परत दर परत हर वो जिम्मेदार जो कहीं ना कहीं से जिम्मेदार है इन 132 मौतों का, इसको लेकर अब जवाबदेही के साथ ही साथ लगातार यहां पर अब एक्शन और एक्शन के बीच